Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to start structure discussion. And who is the presenter? Me? Dr. Aruj. Okay. Dr. Aruj, मैं कर लूं? इसकी आवाज आई है? हेलो, कौन है प्रेजेंटर? हेलो, मैंने कहा कि डॉक्टर रूज नहीं करना चाहे नहीं, तो मैं कर रही हूँ। लेती हूँ। आप मैं कर रही हूँ। आप मुझे अपना अच्छा, नाम चलो ठीक बताएंगे, है, कौन ठीक बोल है, रहे नो हैं? इशू। शिफा, ये बात शिफा बोल रही है। अच्छा, चलो शिफा, कल आप स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है? एक सेशन आपने कर लिया, एक डॉक्टर अरूज कर लिया। अच्छा डॉक्टर अरूज, दिस इज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन चलें ठीक। and the station is a patient primary gravida presented at 6 weeks of the gestation Okay. for antenatal booking as a case of mitral valve replacement. सही। So how will you proceed for the she's here for the booking, and so how will you proceed for the booking of this patient? Okay. First of all, structure discussion है ना? I have Yes. to interact with examiner. Yes. 16 हो गए, 10 minutes. First of all, after introduction and complete my biodata regarding name, age, wife of, married for, gravida, para, LMP, and then I will ask regarding her concern and that she want to be pregnant and want for the conception for the counseling. First of all, I will ask when क्या he बोला was आपने अभी? क्या diagnosed. बोला? She is at 6 weeks of the gestation. आपने क्या बोला? अच्छा, मैं समझी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए मेरे माइंड में ये हो गया, सॉरी. She came at 6 weeks of gestational age. So how will you First of proceed all, for the booking of this I will patient? ask regarding her LMP and take biodata, like she has a cardiac issue, for which I will ask regarding any shortness of breath, or how she was diagnosed, when she was diagnosed, when surgery was done, and any data available or any info in the form of discharge card, what medication she is taking, any preconceptional counseling with the cardiologist done, or any change in medication from the cardiologist before the pregnancy, history of folic acid intake or not, any history of but which medication she is taking right now. Then I will ask her regarding sure of date or not, and any scan done as the patient came at 6 weeks of gestation. Then if not, then I will book my patient at 8 weeks for booking scan at 11 to 13 weeks with knuckle translucency and confirmation of gestational sac, fetal cardiac activity, and estimated date of delivery. And with that, I will ensure that the patient is taking medication if the replacement is done by the valve, which is bioprosthetic. Am I right? Okay, आगे. And then I will go for the 4-weekly follow-up and go for the anomaly scan at 20 weeks of gestation. Booking पे बताएं, booking पे और क्या क्या करना है आपने? Booking पे confirmation of if patient is taking any medication regarding any anomalous which cause the anomaly in the patient. If जैसे that, जैसे कि कौन सी मेडिसिन? like digoxin, diuretics ले रही हो पेशेंट. डॉक्टर साहब, आप कहाँ चली गई हैं? पेशेंट किस चीज का है?
किस चीज का पेशेंट है आपका? रिप्लेसमेंट। माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट का पेशेंट है। क्या ले रहा होता है माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट का पेशेंट? हेपरिन, वारफरिन। Warfarin, I will quit. चलो If patient taking warfarin, then I will quit the warfarin and shift my patient to low molecular weight heparin. so you will quit warfarin. No, I will refer to cardiologist Hmm. for change in the medications. Hmm. Till now, I will counsel my patient regarding not to quit the warfarin till she adjusted the dose from the cardiologist. अच्छा चलें. Okay. What next? And If folic acid, Hmm. and I will show that the patient is taking folic acid 5 milligram. अच्छा. Okay, if the same patient came in the pre-pregnancy period, what will you do then? First of all, I will take the proper history. I will ask the post-operative notes and confirm. And if she is taking warfarin, then I will shift. I will ask my patient if whether when she have pregnancy test positive, then she came as soon as possible, and then I will shift my patient to. I will shift my patient in liaison with the cardiologist to low molecular weight heparin. तब pre-pregnancy में प्री प्रेगनेंसी में सिर्फ जस्ट काउंसिल करेंगे, जैसे ही यूपीटी पॉजिटिव आए फौरन ही जो है ना वो पेशेंट हमारे पास जो है ना वो आए और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ जो है वो हम Hmm. करें. And And start the I will in pre-pregnancy I will counsel my patient to take folic acid 3 months before the pregnancy and 3 months after the pregnancy. नहीं वो अभी तो बात हेपरिन की चल रही थी, वो उसकी क्या हेपरिन की तो हेपरिन जैसे यूपीटी पॉजिटिव when the urine pregnancy test positive, she came as soon as possible to us, and in liaison with the cardiologist we shift the patient to low molecular weight heparin. Okay, आप आगे चले. Anyone else who know about the change of the medication can please tell in the chat box. चलें जी, आगे चलें डॉक्टर रोज. चलें. How will you bring this pregnancy till term? I will counsel my patient to proper follow-up, and I will involve my I will counsel the patient regarding the diagnosis, and she is having the pregnancy with the mitral valve prolapse, and I will inform regarding the fetal-maternal risk. She is having with the mitral valve collapse. क्या कर रही है? Mitral valve replacement. अच्छा, चलें आगे. And having the risk regarding any thrombosis and chances of hemorrhage or bleeding in maternal, and history of any during the pregnancy, any chances of hypertension. First of all, I should rule out any history of hypertension, diabetes mellitus, and if not, then I will counsel that the patient may become hypertensive during the time period of and during the antenatal period. And aspirin देंगे इसमें? क्या? Aspirin, low molecular weight heparin तो दे रहे हैं. You are in the station now. I will tell after the your time. जल्दी चलते हैं, अभी सवाल है मेरे पास. At 11 to 13 weeks, I will go for the booking scan, and at 20 weeks anomaly scan for fetal structure anomaly, and 24 weeks for fetal cardiac echo. If the patient have cardiac issue, then most probably there is a chances of cardiac issue in the fetus. So I have to rule out and then go for the serial growth scan. And from 28 weeks onward, I will ask my patient to come after every 2 weeks. And during this time period, I will go for the scan and monthly follow-up from the cardiologist. At 36 weeks, I will involve the multidisciplinary team with a cardiologist.
and anesthetist, pediatrician, हम्म, and discuss the plan and mode of the delivery, and regarding the anesthesia, analgesia, contraception, counseling for the contraception, and breastfeeding. okay. How And will you I will deliver my patient. डिलीवर कैसे करना है आपने इसको? मुझे मेडिसिन बताएं। The patient I will मुझे ना see स्टार्ट the cardiac echo. If the ejection is in the normal, and the patient is in have no risk factor, and ejection fraction is 55. डॉक्टर रूज स्टॉप I will do vaginal delivery. डॉक्टर रूज स्टॉप। मुझे ये बताएं कि जो है ना पेशेंट को आपने आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। हाँ जी, डॉक्टर रूज मुझे ये बताएं कि पेशेंट को आपने मेडिसिन जो देनी है क्या दे रही हैं आप, कौन सी दे रही हैं हेपरिन? 36 वीक्स पे मैंने इसको चेंज करना था, 12 पे वारफरिन पे शिफ्ट करना था। नहीं था और नहीं, 36 अभी पे आपका उसके 1 बाद मिनट रहता है। मुझे मेडिकेशन चेंज बताएं सिंस द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी टिल द डिलीवरी। हाउ विल यू चेंज योर मेडिसिन? हाउ विल यू गिव हर द हेपरिन वारफरिन व्हाटसोएवर? कैसे देंगी? जल्दी बताएं, टाइम आपका खत्म हो गया। 16 according to 20 her, first of all, I will ask for regarding in the first time. If patient is what this patient is taking, I will keep the patient to low molecular weight heparin from नहीं 12 weeks नहीं onward. I will चलने दे बाद में बात 12 weeks करते onward. I will keep the patient to warfarin 5 mg daily. And then at 36 weeks, I will shift the patient to again into low molecular weight heparin. And low molecular weight heparin is doses is 5,000 to 10,000 international unit infection related के थे। इसके मुझे डोज मिस हो गई थोड़ी सी। चले आगे चले आगे चले। फिर And डिलीवरी deliver my patient through spontaneous vaginal delivery. ओके। स्पॉन्टेनियस लेबर में पेशेंट आई है, कब स्टॉप करेंगी? लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन चल रही है आपको 36 वीक्स से। At the onset of labor. Okay. If If the induction you are plan done planning for before, the cesarean section, if you are planning for the cesarean section, when you will stop? as the patient is taking therapeutic dose of the medication, then I will Is your stop patient before taking that. therapeutic dose? As the patient already have a cardiac issue, and for What this cardiac issue she is having? She was having any thrombus? no mitral valve replacement already done. Replacement. So what medication she was taking? Mitral valve replacement is at risk of having thrombus. Thrombosis. हुआ तो नहीं है ना? तो कौन सी डोज चल रही है? प्रोफिलैक्टिक देंगे इसको। मेरे जहन में ये था कि जो भी डिजीज होगी ना तो उसको हमने थेरेप्यूटिक देनी है। So you will change it to the कितने दिन पहले से बंद करेंगी? 12 hours before. 12 hours. Okay. When will you again start? 6 hours after the delivery, normal vaginal delivery. Or epidural, and 12 hours after the एपिड्यूरल के कितनी देर के बाद आपने स्टार्ट करनी होती है? एपिड्यूरल के जब रिमूव कर देना होता है उसके बाद 4 आवर्स कंप्लीट हो गए उसके बाद हमने स्टार्ट करनी होती है। ठीक है। और उसका जो है वो जो एपिड्यूरल आपने निकालते हैं उससे पिछली डोज जो दी होती है उसमें कितना गैप होना चाहिए? 4 आवर्स का ही है। 12 hours 12 आवर्स। किससे पूछ रही हूँ? पिछली जो डोज दी गई थी उससे एपिड्यूरल निकालने का गैप। यानी कि हो सकता है कि आपने डोज स्टॉप की हो, पेशेंट जल्दी डिलीवर हो गया हो, तो आपका एपिड्यूरल का गैप देखना है आपने कि मैं अब थायराइड कैथेटर निकालने लगी हूँ, पिछली डोज कहीं 12 घंटे के अंदर तो नहीं दी हुई। ठीक है। और अब देनी है वो कम से कम 4 घंटे के बाद आफ्टर द रिमूवल। ठीक है, देनी है। ठीक। अच्छा आगे चले डिलीवरी के बाद। I will deliver my patient and do active management of labor. And meanwhile, डोज पूछ रही हूँ मैं सिर्फ हेपरिन कैसे देंगी? हेपरिन दोबारा से पेशेंट को 5 days के लिए I will shift my patient to heparin for 3 to 5 days जो वारफरिन और हेपरिन में वेट देंगे ना, कंटिन्यू करेंगे। वही प्रोफाइलेक्टिक डोजेज ही देंगे। चल रही है डोज। ठीक है, थर्ड आपने स्टार्ट कर दिया 4 घंटों के बाद। अब कितने दिन देनी है लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन?
अब 5 डेज के लिए देंगे, और मीनवाइल जो है ना, फिर हमने वारफरिन पे शिफ्ट करना है उसको। स्टार्ट करनी है वारफरिन। वारफरिन 3rd डे से स्टार्ट कर देंगे, अच्छा, फिर और फिर उसके बाद 5th डे पे हमने हेपरिन जो है ना वो ओमिट कर देनी है। देन एंड वारफरिन, इसका मतलब आता आपको सारा है डॉक्टर रोज, तो सुनाती क्यों नहीं थी? यही सुनना था। बोलना नहीं आता, यही तो रोला है, यही तो मसला आ जाता है, मैं वहीं पे बंद हो जाता है। क्लोजिंग कैसे करेंगे स्टेशन की? इसकी जो है वो सॉरी डिस्कशन विल एंड द स्टेशन। आपका टाइम बहुत ऊपर गया, 4 मिनट मैंने आपसे ऊपर लिए हैं चीजें उगलवाने के लिए सिर्फ। ये यू नो रिकॉल स्टेशन 9 मई 2024 में ये स्टेशन आया, उस तक स्टेशन आई हुई है। गुड थिंग कि आपने कार्डिक इको करवाई उसकी 24। आप लोग ओटीटी नहीं करवाते हो पेशेंट का 24 to 28 पे? हाँ, नहीं करना था, जबकि जितने भी पेशेंट हैं इनके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो repeat ये कोली में भी ना भी करवानी हो, होती है। being an Asian ethnicity, we are at risk. Asian is a risk factor for diabetes mellitus, and according to the NICE guideline, if anyone risk factor, you will go for OGTT at 24 to 28 weeks of the gestation, and SOGP recommends even at booking. ठीक है, तो आपने OGTT लाजमी बोलना था। दूसरा, रिपीट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं एट 28 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन हर पेशेंट की, ठीक है। और एज ठीक। पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनकी असेसमेंट जो होती है वो 32 वीक्स पे होती है। एम आई राइट? एनीवन एल्स? कार्डियक की, हाँ, बाकी सारे 30 पेशेंट्स की 36 पे होती है, मेरे ख्याल से कार्डियक की 32 पे होती है। एनीवन एल्स? तो कार्डियक को उसी वक्त प्लान भी कर लेते हैं। कोई जेन में है किसी के कंफर्म के 32 पे ही है कार्डिक हाँ, ये पेशेंट? सना में है, सना उजाला में मेरे ख्याल में, मैं आपको तो उसकी भेज दूंगी पिक्चर। सना उजाला नहीं चाहिए। नहीं, कहीं गाइडलाइन का रेफरेंस है किसी के ज़हन में? मुझे ये याद पड़ रहा है कि 32 पे इसकी असेसमेंट होती है कार्डिक पेशेंट्स की, ठीक है। कार्डिक पेशेंट्स की, ओबीस पेशेंट की असेसमेंट पहले हो जाती है, ठीक है। एंड ट्विन प्रेगनेंसी, कार्डिक की आई एम नॉट श्योर, लेकिन ट्विन, ओबीस, इनकी तो होती है 32 पे असेसमेंट, ठीक है। और जी, जी। ठीक है। आपको स्टेशन आता था बट आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सॉरी। और आई विल चेंज क्या होता है, उसको कॉन्फिडेंटली कहो, मैडम द मेडिसिन विल बी चेंज इन कोलैबोरेशन विद द कार्डियोलॉजिस्ट। अपने पूरे 2 से 3 बार आपने उसको ये बता के आना है कि कार्डियोलॉजिस्ट इज देयर, मेडिसिन विल बी चेंज बाय द कार्डियोलॉजिस्ट, ही विल डू, शी विल डू। वारफरिन के साइड इफेक्ट्स, आप चली गई पता नहीं उसको क्या बना दिया, और डाइजॉक्सिन दे दी, पता नहीं क्या कुछ दे दिया उसको, सारा कुछ दे। अच्छा, फिर डाइजॉक्सिन के साइड इफेक्ट बता रही है भाई, डाइजॉक्सिन तो कार्डियक पेशेंट को देते हैं हम सारों को। उसमें तो एक ही के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल। भाई हाँ, वो डाइजॉक्सिन तो डाययूरेटिक्स का है, मेन डाइजॉक्सिन सॉरी को ले लिया, डाययूरेटिक्स का। पेशेंट को कुछ भी नहीं है, पेशेंट की माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हो चुकी है बस, और कुछ भी नहीं। शी इज एट रिस्क ऑफ एरिथमिया, शी इज एट रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। उसके आपने बताया जी थ्रोम्बोसिस का इसको रिस्क है, इसलिए मैं इसको लो हेपरिन दे रही हूँ। हाँ जी, फ्रैक्शनेटेड और अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की डोज बताएं। अनफ्रैक्शनेटेड में तो 10,000 से 5,000 से 10,000 तक का लिखा है, हाँ, 5,000 इंटरनेशनल। ठीक है। 40,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है, 5,000 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट इन द डिवाइडेड डोजेस दी जाती है, ठीक है बिल्कुल। और दूसरी और जो उसकी है हेपरिन की, वो जहन उसकी पर केजी के अकॉर्डिंगली क्या है? दी 1 जाती है। मिलीग्राम पर केजी, 1 मिलीग्राम पर केजी ओडी प्रोफाइलैक्टिक डोज, 1 मिलीग्राम पर केजी बीडी, थेराप्यूटिक। ठीक है। और हाई सही। प्रोफैक्टिक 0.5 मिलीग्राम होती है इस तरह की, ठीक है। अच्छा, इसमें लोपिन देंगे कि नहीं? मुझे मिस वो हेपरिन तो ऑलरेडी चल रही है इसको। देखिए हेपरिन तो इसको इसके रिस्पेक्टिव से डॉक्टर दी सना, जाती है। डॉक्टर सना, क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ ये जी। जो आप बता रही हैं 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से, 1 ये तो मिलीग्राम, थेराप्यूटिक डोज नहीं है? 1 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब। नहीं, मैंने क्या बोला है, हेलो, 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओडी डोज, ओडी। 1 मिलीग्राम पर केजी बीडी डोज, थेराप्यूटिक नहीं, और वो। ये आप थेराप्यूटिक बता रही है ना? नहीं, एक ओडी है एक बीडी है, जहां तक मुझे याद है, कंफर्म कर लें इसको।
नहीं, वो जो हमने याद की हुई है इनॉक्साप्रिन 40 मिलीग्राम, फिर 80 मिलीग्राम, हाँ जो हमने वेट के अकॉर्डिंगली करनी होती है, वो नहीं, वो वाली नहीं चलेगी जो गाइडलाइन में लिखी हुई है, टेबल बना हुआ है। वही है, बिल्कुल वही। देखे ना 40 मिली कितना तक है आप की हम्म। ऐसे ही है ना, 50 नहीं 40 वो मिलीग्राम। आवाज कट रही है आपकी डक हाँ से ना। जी, आपकी आवाज कट गई। सॉरी, अब आ रही है। हाँ जी, जी आ जी। रही है। लेस देन 50 20 मिलीग्राम, 50 to 90 40 मिलीग्राम, 90 हाँ to जी हाँ जी। 92 फिर 130 130 आ गया। 130, yes, it's 60 milligram जी probably, and जी 130 to 170 80 milligram, and इससे ऊपर हाँ 1 milligram per kg, ऊपर। हाँ 1 milligram per kg। पर केजी। ठीक है, तो मैं वही आपको हाँ बता जी। रही हूँ, 1 मिलीग्राम पर डे होती है प्रोफाइलिक, और थेरापेटिक होती है 1 मिलीग्राम पर केजी बीडी। अच्छा इजी याद करने के लिए किया हुआ है। ठीक है, अच्छा। ठीक अच्छा। ठीक। और इसको कंफर्म रिकंफर्म कर लीजिएगा, अगर हो सकता है इंसान हो, गलती हो सकती है। ठीक है, तो ठीक। अच्छा, एक मेरा भी यही कंसेप्ट था जो डॉक्टर रूज का कंसेप्ट है कि अगर पेशेंट वारफरिन ले रही है तो उसको हाँ, फिर थेराप्यूटिक डोज देते हैं। नहीं देखो नहीं आप, नहीं, वो ये कहना नहीं, देखो वो कह रही हैं कि इसे कोई इशू तो नहीं हुआ ना, किसी किस्म का कोई थ्रोम्बस मेरे तो नहीं ख्याल आया से कोई तो बात में सही क्यों रहे लेकिन हैं। हाई रिस्क होता है ना, एक हाई रिस्क, एक वेरी वेरी हाई रिस्क होता है, ये टेबल बना हुआ है ना, वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क, जिसमें हमने वेरी हाई डोज देखिए प्रोफाइलेक्टिक या थेराप्यूटिक देते थे। जी इसमें जी। क्या है, हाई प्रोफाइलेक्टिक डोज, गाइडलाइंस को दोबारा पढ़े। हाँ, हाई प्रोफाइलेक्टिक डोज हाई देनी है ना। प्रोफाइलेक्टिक डोज देनी है, ठीक है। लो जी जी। प्रोफाइलेक्टिक और हाई प्रोफाइलेक्टिक और थेराप्यूटिक में फर्क है। हाँ ठीक है, आप हाई अच्छा प्रोफाइलेक्टिक डोज कहें फिर। नहीं तो हाई प्रोफाइलेक्टिक डोज और थेराप्यूटिक डोज सेम नहीं है। नहीं, फर्क है, दोबारा गाइडलाइंस को पढ़े। वो डेढ़ अच्छा गुना है। जिस तरह मतलब कि अगर किसी को न, मेरे जहन से निकली हुई है, तो जिस तरह अगर किसी को 60 मिलीग्राम चल रही है तो हाई प्रोफाइलेक्टिक जो है वो 90 मिलीग्राम है, बीडी। ऐसे है ना, बीटी नहीं है, 90 मिलीग्राम है, ऐसे है। दोबारा यानी देखें, इसको 1.5 कर लेंगे इसको, यानी अगर अच्छा थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना, हाई रिस्क हाई हो रही है, याद है। लेकिन हम थेराप्यूटिक में कंफर्म भी नहीं करें, होगी वो। गाइडलाइंस के 2-3 टेबल्स हैं, ये कंफर्म कर लें इसको प्लीज, ठीक है। चले मैं सही कर कंफर्म लिए कर, आप हाँ ना, ये मैं आप ग्रुप इसमें में से लगाती पूछ हूँ भी क्योंकि लीजिएगा मैंने काफी ऐसे कुछ। कंसेप्ट बनाया हुआ था। अच्छा चलें, इसको दोबारा कंफर्म कर लें, ठीक है। हो सकता है चलें मैं ठीक है। कंफर्म थोड़ी सबने पढ़ा ही हुआ है, सिर्फ मुझे भी सिर्फ गाइडलाइन की बात याद है, तो आप रिकंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखूंगी, आप भी देख लीजिएगा। अच्छा, सेकंड थिंग आप पूछ रही थी डॉक्टर रोज, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, वो एस्प्रिन देंगे। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द एस्प्रिन? एस्प्रिन पेशेंट को किस लिए दी जाती मोस्टली जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज है, APL है, SL है, क्रोनिक है? हाइपरटेंसिव है। क्यों दी जाती है? एस्प्रिन क्यों दे रहे होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज वाले मरीजों को? प्री ताकि जो है वो जितने प्रीवेंट भी प्री वो फंगस एक्लेम्शिया। फॉर्मेशन हो रही है ना, वो ना हो। थ्रोम्बस नहीं, नहीं नहीं, प्रीवेंट प्री एक्लेम्शिया के लिए। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया। लेकिन वो इंडिकेशन प्री तो तभी होती है ना कि जब वो उसकी ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं जाता उसमें। नहीं, देखिए ऐसे गलत कॉन्सेप्ट नहीं बनाया आपने। फॉर द सही। प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया, फॉर द प्रिवेंशन, व्हाट इज द इंडिकेशन, क्या है? लिखी हुई है टेबल हाइपरटेंशन के गाइडलाइंस में। मॉडरेट रिस्क वही फैक्टर, मेजर रिस्क और माइनर रिस्क आ जाते हैं, 2 माइनर रिस्क और एक मेजर रिस्क वाले। ठीक है, माइनर नहीं, मॉडरेट रिस्क फैक्टर है वो। वन मॉडरेट सॉरी हाँ। वन मॉडरेट रिस्क फैक्टर हो पेशेंट में, या पेशेंट है वो हाई रिस्क फैक्टर में। हाई रिस्क फैक्टर में ये फॉल नहीं कर रही, मोर देन वन मेजर फैक्टर में ये फॉल कर सकती है, क्योंकि ये प्राइमी ग्रेविडा है, हो सकता है कि इसकी एज 40 ईयर से ऊपर हो, तो फिर इसको देंगे। या इसका BMI जो कि आपने चेक नहीं किया, एग्जामिनेशन की थी आपने, किया मरीज की एग्जामिनेशन? मैं कौन वही पहुंचा, सारे एंटीनेटल में ही घूमती रही हूँ सुबह वही शाम। एंटीनेटल। हाँ, मैं कह रही हूँ बुकिंग पे मरीज आके बैठा हुआ है, बुकिंग पे क्या करोगी? हिस्ट्री लूंगी, एग्जामिनेशन करूंगी, इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी। बुकिंग इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी सिवाय स्कैन के। सारी बुकिंग्स में सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाऊंगी, उसकी अर्ली जो कि रिसेंट एको है वो भी देखूंगी। आपको तो कराने का कोई फायदा नहीं है। हाँ। टेस्ट लाइन करवाई है उसकी? नहीं करवाई। डॉक्टर साहब ना, यहीं से मुझे याद, आपने जो बात की है, तो यहाँ जब एग्जाम में ये आता है स्ट्रक्चर डिस्कशन और वो ये कहते हैं कि 6 वीक्स पे आ गई है, तो मैंने ये सारा कुछ बताना होगा कि बेसलाइन भी करवानी है इसकी। क्यों नहीं करवानी? बुकिंग पे मरीज आके बैठा हुआ है, उसने कहा हाउ विल यू गो टू द बुकिंग ऑफ
आपने बुक करना है इसको। जिस तरह ओपीडी में 6 हफ्ते का मरीज को बैठ के बुक करते हो, वहाँ 6 हफ्ते के मरीज को बैठ के पूरा एंटीनेटल का प्लान तो सबसे एंड पे देते हो ना। पहले तो उसकी हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन करते हो, हिस्ट्री आप लोगों की मुझे एतराज है क्यों? बस I will take the general introduction of the patient, especially the age of the patient. आपके लिए जरूरी है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन फ्लैश फ्लू वो आपका ठीक है, लेकिन पीछे ठीक है कब when the disease was diagnosed, what was the disease, what was the indication for the surgery, and whether she had the prosthetic, bioprosthetic या artificial valve replacement, and what medication currently the patient is taking, whether she had any pre-pregnancy counseling with her doctor, and what is there any change of the medication, any hospital admission of the patient, chronic disorder disease वाला ही template चला लें आप अपना, मेडिकल डिसऑर्डर वाला। हाँ। I would like to review the notes of the patient, ठीक है। and then now currently the patient is pregnant, any complaint in this pregnancy up till now trimester की क्या complaint होती है? 3 complaints है सिर्फ, वॉमिटिंग तो नहीं है, पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं है, और क्या होता है? colic discharge, ठीक है। तो ये 3 बात अगर तो फीवर फ्लू रैश भी पूछ सकते हो, फिक्स तो है अगर पूछना है तो चले। और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, देन आई विल गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, दैट विल इंक्लूड इस मरीज का क्या एग्जामिनेशन करना है बेचारे का? सिर्फ बीएमआई चेक करना है, इतनी सी बात है। चेस्ट नहीं करना एग्जामिनेशन, हार्ट भी, अगर चेस्ट एग्जामिनेशन हेलो did the patient give any history of shortness of breath, कोई उससे पूछो is the patient नेहा क्लासिफाई नहीं किया मैंने। अच्छा, जब सर्जरी होने के बाद भी मैं नेहा क्लासिफिकेशन को फॉलो करूंगी जी? किसको? न्यूयॉर्क हार्ट, बिल्कुल अगर नाम बोलना चाहते तो बोलो, लेकिन पेशेंट भाई एक वैल्व रिप्लेसमेंट का मरीज आया, देखो बी सिंपल इन द एग्जाम। क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? मैं मैडम न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन में कई वो कैटेगरी 3 में ना हो सकता है मरीज एसिम्प्टोमेटिक हो, सिर्फ 6 हफ्तों की प्रेगनेंसी होगी, बस उसको लेके चलो, सिंपल ठीक है, बी सिंपल। अच्छा, फिर इन्वेस्टिगेशंस करवाओ, सारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी मैडम, उसका स्कैन करवाऊंगी, इकोकार्डियोग्राफी देखूंगी, कार्डियोलॉजिस्ट से उसके डिस्कस करूंगी, अभी वो बुकिंग पे मेरे पास आ गई, उसको बुक करूंगी, उसको बताऊंगी कम ऑन द फ्रीक्वेंट बेसिस, ऑन द 2 वीकली बेसिस, ठीक है। पूरा फिर अब आगे का प्लान दो, ठीक है। प्लान ठीक था, आप एंड तक लेकर जाना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? टाइम खत्म हो गया। अच्छा नहीं डॉक्टर सना एक बार बता दें, ये स्ट्रक्चर डिस्कशन में हमने खुद से सपोज कर लेना है कि इसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, या खुद से सपोज कर एग्जामिनर बताएगा। नहीं, कोई आप पूछोगे तो बताएगा। देखो अगर तो खुद से कुछ पोस्ट करना है ना तो नॉर्मल पोस्ट करना है, समझ आ रही है बात? ठीक है, वरना एग्जामिनर बताएगा कि सिम्टम है कि नहीं। कौन से सिम्टम मैंने कहे हैं खुद से सपोज करने हैं? कोई सिम्टम नहीं सपोज करने। मैंने कब कहा है कि इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बनाओ? नहीं बनाना। नहीं तो स्ट्रक्चर डिस्कशन में एग्जामिनर से पूछना होता है कि आप हमें बताएं सिम्टम्स के बारे में। यार पता है कि जो अब ये न्यू पैटर्न में ना ये लोग मतलब करते हैं इस तरह से, आपने उनसे ना बीच में ना एक आधी दफा सवाल कर लेना, मैडम डू यू हैव एनी फाइंडिंग्स फॉर मी और शुड आई प्रोसीड? तो कुछ एग्जामिनर जिनको इंस्ट्रक्शन होती है प्रोसीड करने की, वो प्रोसीड करवाते रहते हैं। आवाज और करती। अच्छा अपना हाँ अच्छा, और कुछ एग्जामिनर्स जो है ना वो आपको बीच में साथ बताएंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हाँ जी मरीज को 6 महीने पहले, हाँ जी मरीज को आर्टिफिशियल वेब, आपको साथ तो इस बताएंगे हाँ, क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर डिस्कशन था मैं एग्जामिनर से पूछा था, उसने मुझे बताया था, फिर मैंने एंड पे डायग्नोसिस बताया था, फिर उन्होंने कहा था अच्छा मैनेजमेंट बताएं। है ना, आपको कुछ एग्जामिनर आपको आपने क्या है, आपने एग्जामिनर से पूछना है, एग्जामिनर से पूछना है मैडम शुड आई प्रोसीड आर यू, एक तो ये बीच में आपने करना है प्रोसीड आर यू हैव एनी अदर क्वेश्चन फॉर मी, और दूसरा कि मैडम डू यू हैव एनी फाइंडिंग्स, वुड यू लाइक टू टेल मी एनी, ठीक है। इवन हिस्ट्री में भी आपको साथ साथ बताते जाते हैं, और कई एग्जामिनर ऐसे होते हैं पूरे आप 3 मिनट वेस्ट कर लेते हो और उसके बाद आप पूछते हो तो ही नहीं था, उससे इंटरेक्ट करते रहना भी। जैसे मुझे आया था डॉक्टर सना, मुझे आया था यानी इनफर्टिलिटी का आया था ना, वो क्या कहते हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का आया था, तो मैं तो उनसे क्वेश्चन करती रही थी, वो मुझे आंसर बताती रही थी, इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन सारा, तो इस तरह करना होता है।